Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will learn about the topic extraction of metals, which is an important topic from the chapter metals and non-metals. So first of all, let us see few terms which will be used here. So the first term is minerals. What are minerals? So there are many elements which are naturally present in the earth's crust and they are known as minerals. So elements which are naturally present in the earth's crust are known as minerals. Then there is one more term which is ore. So what are these ores? So if in a mineral there is the high percentage of any metal, then that mineral is termed as ore. Means अगर किसी मिनरल में किसी एक पर्टिकुलर मेटल का कंसंट्रेशन या परसेंटेज ज्यादा है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? ओर. और कम से कम इतना ज्यादा हो कि हम जब उस ओर से अपने एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करें तो प्रॉफिटेबल हो, है ना. ऐसा नहीं कि जैसे रेत में भी क्या होता है, जो सैंड होता है उसमें भी सिल्वर होता है, लेकिन अगर हम उससे सिल्वर को निकालने की कोशिश करें तो जितने का सिल्वर नहीं निकलेगा उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है. तो ओर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कि वो मिनरल्स जिसमें किसी मेटल का परसेंटेज हाई हो, कम से कम इतना हाई हो कि जब हम वहां से अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करें सो इट शुड बी प्रॉफिटेबल. सो ओर्स आर the minerals which have higher percentage of a particular metal such that it can be extracted profitably. Such that it can be extracted profitably. Then there is one more term. One more term is gangue. Gangue is the impurities in the form of sand or mud present in the ores. So it is impurities present in the ore. Okay, so these are mineral, ore and gangue. Now let us move towards the extraction of metals. So we already have studied about the reactivity series of metals, which is a series of metals based according to their reactivity. So according to their reactivity, these metals occur in the earth. Means the metals which are low in reactivity or which are below in the reactivity series, they are found basically in the free state because they are less reactive, so they will not react with any other compound and they will occur in free state. Means the occurrence of metals in the earth crust depends upon their reactivity. Those which are less reactive, they occur in free state. Those which are moderately reactive, they occur in the form of combined state, means in the form of sulfides or carbonates or oxides, and those which are highly reactive, they are present in the form of chlorides or oxides. So metals can occur in free state or in combined state. Combined state means in the form of oxides, sulfides, carbonates, etc.
So basically the extraction of metal is based upon their position in the reactivity series. So now first of all let us see the extraction of elements lower in the reactivity series. Extraction of elements lower in the reactivity series. The metals which are lower in the reactivity series, they are likely to be unreactive and their oxides can be reduced to the metal even only in heating. मीन्स केवल हीट देकर ही हम उनके ऑक्साइड्स को वहां से हम प्योर मेटल को आइसोलेट कर सकते हैं. सो their metal oxides can be reduced to metals by heating alone. मतलब केवल हीट देके ही हम इन एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी. और क्या है ये? मरकरिक सल्फाइड है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड. इसको जब हमने क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बना लेगा? फर्स्ट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल गेट रिलीज्ड. Then this mercuric oxide, when again it will be heated, then it will form mercury and oxygen will be released. So the metals which are lower in the reactivity series, they are obtained simply by heating their oxide ores. Okay, now let us come to the extraction of metals. Extraction of metals, ठीक है, मीडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, मीडियम या मिडिल में होंगे. ठीक है, मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो बीच में होंगे, मतलब ना ज्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव. तो ऐसे मेटल्स का हम कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे? तो क्या होता है कि व्हेन अभी भी हमने देखा कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को निकालना इजी है. ठीक है, तो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं जो कि मिडिल में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, they are moderately reactive, so they occur in combined state in the form of sulfides और carbonate ores. तो पहले क्या करना है? पहले उनके सल्फाइड ओर को या उनके कार्बोनेट ओर को सबसे पहले हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल these metals occur as sulfides or carbonate ores. ठीक है, तो सबसे पहले इनके जो सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म है उनको हम क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू देयर ऑक्साइड्स. क्यों? बिकॉज मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्यूरिफाई करना इजियर है देन फ्रॉम द सल्फाइड्स और कार्बोनेट. सो फर्स्टली these will be converted into their corresponding oxides. ठीक है, और किस प्रोसेस से? रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से, बाय ईदर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. ठीक है, क्यों? कई बार पूछ लेता है कि क्यों हम इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे? तो बिकॉज इट इज इजियर टू ऑब्टेन metals from their oxides than from their sulfide or carbonate ore.
ठीक है, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है, एकदम समझ में आ जाएगा हम लोग को इजीली। तो एक तरफ लिख लेते हैं क्या, रोस्टिंग, और एक तरफ कैल्सिनेशन। ठीक है, अभी क्या बात हुई कि या तो ये मेटल सल्फाइड के फॉर्म में रहते हैं या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहते हैं, और इन्हें हमें कन्वर्ट करना है इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स। सो रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स, कि सल्फाइड ओर को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स एंड कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो ये क्या है C और ये क्या है C, ये क्या है S, ये क्या है S। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया कि दोनों केस में हम हीटिंग करेंगे, लेकिन रोस्टिंग के केस में वी विल यूज एक्सेस एयर, वेयर एज कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, वी विल यूज एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर। तो सल्फाइड ओर्स are heated in presence of excess air। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कैल्सिनेशन में, कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अब यहां पर देख लो एब्सेंस C और एक्सेस S। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम सल्फाइड ओर को हीट करेंगे ताकि हमारा मेटल ऑक्साइड बने, और क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और जब हम कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे ताकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बने, तब क्या रिलीज होगा, CO2 गैस विल बी रिलीज। तो SO2 विल बी रिलीज, और यहां पे क्या होगा, CO2 विल बी रिलीज। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हम क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए, हमारा SO2 गैस रिलीज होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कार्बोनेट ओर, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहां पर हम ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ZnO प्लस CO2। तो यहां पर हमारा क्या रिलीज हो गया, CO2 गैस, और यहां पर हमारा क्या रिलीज हो गया, SO2 गैस। अब जब हमारा मेटल ऑक्साइड आ गया है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट, या जनरली हम यहां पर क्या यूज करते हैं, वी यूज कार्बन। सो क्या होगा कि ZnO प्लस कार्बन, और क्या बन जाएगा हमारा, Zn प्लस CO। तो यहाँ पे हमारा मेटल रिलीज होकर आ गया। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर in the middle of the reactivity series. Now let us talk about the extraction of metals. Extraction of metals higher in the reactivity series. Higher in the reactivity series. तो क्या होगा कि जो मेटल्स हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज हैं, जैसे हमारे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, है ना, मैग्नीशियम हो गए, तो ये सब क्या है, ये हाईली रिएक्टिव हैं। तो ये इनको इन सब प्रोसेस से या ऑक्साइड से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इनका क्या होता है, वी यूज
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और कैसे होता है वहां पर कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है उनके मॉल्टन क्लोराइड्स का, ठीक है। तो दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन of their molten chlorides, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हम कैसे जानेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है कि कैटायंस विल माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे याद रहेगा क्या हमारा कि कैटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, और सिमिलरली एनायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। अब कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड क्या होना चाहिए, निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि पॉजिटिव किधर जाएगा, निगेटिव के पास। ऐसे ही एनायन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो एनोड कैसा होना चाहिए, एनोड शुड बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब हमारा जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा मेटल क्लोराइड का, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म कैटायन। तो मेटल जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और जो हमारा क्लोराइड है वो क्या होगा, वो नॉन मेटल है, इट फॉर्म्स एनायन। और जब मॉल्टन क्लोराइड से मेटल वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, तो जो क्लोरीन गैस होगी इट विल बी लिबरेटेड एट दी एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में मेटल्स विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड and chlorine gas is liberated at anode, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हमें केमिकल इक्वेशन पूछ देता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वहां पर क्या केमिकल इक्वेशन हुआ। तो उसे हम देख लेते हैं कि कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। तो क्या बताया था मैंने कि जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस, ठीक है। तो और मेटल क्या होगा, जब कैटायन रहता है तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। तो क्या होगा Na+ और मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होगा तो सोडियम। ऐसे ही एनोड पे क्या होगा, जो क्लोराइड आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोरीन गैस और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो जो क्लोरीन गैस है इट विल बी लिबरेटेड एट द एनोड एंड at cathode the metal will be deposited at the cathode. So this was all about the extraction of metals from their ores.